session with by Code Chef UIT PU chapter. As the poster suggests, हम आज binary search basics करेंगे. We'll get right into it. But before getting into binary search, हम पहले थोड़ा complexity analysis करेंगे. Okay? Complexity analysis क्या होता है? Does anyone know what complexity is? Time complexity. I think first sem में पढ़ाते हैं, but I'm not sure. क्या होता है? किसी को पता है complexity analysis? Okay, cool. Uh, cool. Yeah. Is my screen visible? Once again, it's loading. Sir, it's visible. Okay. Once again, the site is loading. I don't know why it's taking so much time. Um, yeah. So okay. Cool. So complexity bookish definition पे जाए तो it's basically growth. It's basically growth measure करते हैं. जैसे मैं एक्स वाई एक्सिस पे लूं तो किसी चीज में क्या स्टेप्स लग रहे हैं, वो ग्रोथ, उसकी ग्रोथ किस तरह हो रही है. ओके, तो मैं कुछ फॉर्म एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ a प्लस बी कर रहा हूँ मैं. ओके, टू नंबर्स, मैं उसको सिंपली ऐड कर रहा हूँ. तो अगर a चाहे जितना भी बड़ा हो, मतलब विद इन रीजन, और b चाहे जितना भी बड़ा हो, a प्लस बी करने में हमको सेम टाइम लगेगा, राइट? दैट इज कांस्टेंट टाइम. सॉरी फॉर माय बैड हैंडराइटिंग. कांस्टेंट टाइम लगेगा, राइट? तो मैं ये इसको अगर मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूं तो इट वुड बी समथिंग लाइक, अगर ये एक्स वाई एक्सिस है तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना? कांस्टेंट. इफ दिस इज size of a or b, let's call it n. So this, the number of, and this is steps on the y axis, the number of steps needed or time needed to do it, then it will be a constant graph, as in a or b से irrelevant है addition operation, at least for our purposes. तो तो ये हुआ constant time. Wait one second, I'll write it a bit cleanly. तो yeah, so a plus b is constant time, जिसको हम इस तरह लिखते हैं, बिग ओ नोटेशन कहते हैं इसको. बिग ओ नोटेशन. इसको हम ओ ऑफ वन, जैसे ओ और ब्रैकेट के अंदर जो भी रहता है, तो ओ ऑफ, अगर एन है तो ओ ऑफ एन कहते हैं, ओ ऑफ अंदर वन है तो ओ ऑफ वन कहते हैं. ओ ऑफ एन का मतलब कांस्टेंट टाइम, विद एज इन वन स्टेप्स लग रहे हैं हर बार. इट माइट नॉट बी वन स्टेप, इट माइट बी जस्ट 5 स्टेप्स, बट कांस्टेंट रह रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ए एंड बी, तो ये ओ ऑफ वन कहते हैं. नाउ एन एग्जांपल फॉर समथिंग दैट इज not O of 1 is like, how do I type this? Okay. So find the sum of the elements of the array of length n कह दूं मैं अगर. हाँ, अगर मैं ये चीज कहता हूं तो इसका कोड, मैं कोड भी आई गेस लिख ही देता हूँ. इट विल बी समथिंग लाइक दिस. फॉर int x equals to 0, x is less than n, x plus, and then we will go to the next line, and कोई sum variable होगा, sum plus equals to ar of x. That is the code, right? So it is very simple to see. For an array of length n, it will take n steps, right? So इस चीज को हम big O notation में O of n कहते हैं, ठीक है? Right? Now if a task is तो बेसिकली एज यू कैन सी, ये नेचर बताता है कि किसी चीज को करने में हमको कितना टाइम लगता है, उस तरह की चीजें बताता है. हाँ, और अगर मैं इसको थोड़ा और एक और प्रॉब्लम लूं कि गिवन एंड गिवन एन एरे प्रिंट ऑल वैल्यू पेयर्स. ऑल वैल्यू पेयर्स मतलब अगर एरे है फॉर do I did this? Yeah. तो एग्जाम्पल अगर एरे है 1 2 3, देन आई वांट 1 1 2 2 3 3 1 2
2 1 1 3 3 1 2 3 3 2, इसलिए ये चाहता हूँ। हाँ, तो इट इज वेरी सिंपल, आई गेस इट्स वेरी सिंपल टू सी कि मुझे कुछ इस तरह का कोड लिखना पड़ेगा फॉर int x equal to 0, x is less than n, x plus plus, for I guess I should make everything bigger, but I'll get into it. int y equals to 0, y is less than n, y plus plus, yeah, I do this, and if I do, and then maybe see out ar of x, comma ar of y, and then backslash n. Yeah, so it is simple to see कि कुछ इस तरह का कोड मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगेगा, है ना? Right. So for this, for if the array is of length 3, then it is simple to see कि 9 pairs होंगे, right? Arrays of length 5, then we would need what, 25 steps or something like that. 0 3 4 5 6 7 हाँ, 25 steps. And same n के लिए n square steps लगेंगे हमको सारे pairs print करने में. तो मैं इसको कहता हूँ कि ये O of, wait, I should remove the other. This is O of n square. Which basically means for any, जैसे जैसे n grow करेगा, हाँ, what does this n square mean? This means कि जैसे जैसे अगर मैं प्लॉट करूं, x एक्सिस पे n है और y एक्सिस पे लेट्स से स्टेप्स हैं या टाइम है, समथिंग लाइक दैट, स्टेप्स ही बोलते हैं, टाइम थोड़ा इन वो है, तो ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, अ पैराबोला, है ना? तो इस चीज को ये O of n square बोल रहे हैं. बेसिकली n बढ़ाने पे s की ग्रोथ का नेचर किस तरह का होगा, ग्राफ किस तरह का बनेगा, ये बोलता है ये, ठीक है? तो ये है n स्क्वायर. एंड नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इट इज, आई गेस, इजी टू सी कि अगर हम सेम काम एग्जैक्ट सेम काम को O of 1 पे कर पा रहे हैं, तो इट इज मच बेटर देन डूइंग इट इन O of n, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप्स कम लग रहे हैं, विच इज मच बेटर देन डूइंग इट इन O of n स्क्वायर, है ना? तो मैं अगर, क्योंकि टाइम कम लगेगा, टाइम बचेगा, स्टेप्स कम लोगे, कंप्यूटिंग पावर भी कम लगेगी, थिंग्स लाइक दैट. तो बेसिकली अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं किसी कोड की, तो हमको कम करना चाहिए, एज इन मोटा मोटा कॉम्प्लेक्सिटी कम करने पे कोड ऑप्टिमाइज होता है. ये आइडिया समझ आया कि ये हम कॉम्प्लेक्सिटी को बेसिकली, कॉम्प्लेक्सिटी इज अ वे ऑफ क्वांटिफाइंग कि तुम्हारा कोड कितना ऑप्टिमाइज्ड है, किस नेचर का है, कितना टाइम लग सकता है उसको करने में. सो फार विथ मी ये सबको समझ आया कि ओ ऑफ ओ नोटेशन क्या होती है, पहली चीज, n स्क्वायर O of 1 ये क्या होता है, एंड हम कॉम्प्लेक्सिटी कम कर सकते हैं तो करना चाहिए. ये किसी को इसमें कोई डाउट? ओके, कूल. तो आई विल नाउ गेट इनटू एक चीज जो हम जिसके साथ हम डील कर चुके हैं, राइट? याद है हमने लास्ट सेशन में हमने एक कोड लिखा था प्राइम नंबर निकालने का, राइट? तो इट वाज लेट्स से 2 से लेके x इज लेस देन n तक और फिर x प्लस प्लस तक, और फिर इसके अंदर इफ n परसेंटेज x इक्वल टू 0, देन डू समथिंग लिख देता हूँ मैं इधर, ठीक है ना? तो इसको मैं अगर अब, तब मैंने इसको क्या बोला था कि इसमें n स्टेप्स टाइप लग जाएंगे, n तक जाना पड़ेगा हमको. तो नाउ दैट वी नो अबाउट दिस बिग O नोटेशन, वी कैन से दैट इट इज O of n, राइट? है ना? O of n है ये कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब O of n कॉम्प्लेक्सिटी है इस एल्गोरिथम की इन इट्स करंट स्टेट. फिर हमने जब इसको और ऑप्टिमाइज किया था, तो हमने ये लिमिट रूट ऑफ n कर दी थी, राइट? 1 सेकेंड.
इसको मैंने रूट ऑफ n कर दिया था, है ना, लेस देन इक्वल्स टू रूट ऑफ n। रूट इज द, रुक जाओ इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ n। इसको एग्जैक्टली इस तरह नहीं लिखा था बट क्लोज इनफ। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कोई बताना चाहेगा, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? No one, like, does anyone want to guess? इसी का अच्छा गैस ही कर लो। आई वांट टू, अभी तक जो बताया उसमें O of n स्टेप्स लग रहे थे। अब हम विवेक नो इट्स नॉट O of n, नॉट, नो इट्स O नॉट of root n. करेक्ट। इट सो ये it's not log n, it's not 1, it's not O of n, it's O of root n। yes correct, O of root n, because हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम 2 से लेके रूट n तक जा रहे हैं, तो रफली n रूट n स्टेप्स लग रहे हैं हर चीज करने में, मतलब हर बार, तो हम इसको O of root n बोल सकते हैं। एंड नाउ you've seen a live example of optimization working। क्यों? क्योंकि जो पहला एल्गोरिदम था वो O of n था, तो it would have been something like this on the graph, right? It's मतलब अगर ये अगेन ये स्टेप्स है और ये n है, जो नंबर का हम निकाल रहे हैं प्राइम है कि नहीं, तो ये कुछ इस तरह लेता, और हमने अब रूट n कर दिया, तो इट्स समथिंग लाइक दिस, है ना। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, द बेनिफिट ऑफ दिस एल्गोरिदम इंक्रीजेस, और इसी नेचर, ये रूट n है, पार्डन माय ग्रेट ड्राइंग स्किल्स, बट बेसिकली इसी चीज को ये ट्रैक करता है कि ये ग्रोथ करने पे ये हो क्या रहा है, किस नेचर का ग्राफ बन रहा है, और क्या एफिशिएंट है क्या नहीं है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स को उतनी बात नहीं है, ज्यादा नेचर ऑफ द ग्राफ, ठीक है। ये बाइनरी सर्च पे इंपॉर्टेंट क्यों है, वो अब नवीन सर बताएंगे। नवीन सर, so Naveen sir is CSE third year. He's also very good at competitive programming, and he'll tell you more about binary search and where it all comes here. Okay. Hello. Okay, I'm audible, Amar? Yes. Okay. So basically जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है एक सर्चिंग एल्गोरिथम है। सो इससे पहले तुमने सर्चिंग एल्गोरिथम लाइक हम सिंपल एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, लाइक हम अपने डेली लाइफ में सर्चिंग करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक प्रोग्रामिंग के वे में बोलूं कि एक n इंटीजर्स का एरे दूं, एंड तुम्हें बोलूं कि एक मुझे इंटीजर फाइंड करना है 1 से लेके मेरे पास 20 नंबर्स है, एंड मुझे 17 फाइंड करना है, तो मैं उसको कैसे फाइंड करूंगा, कोई मुझे बता सकता है? लाइक सिंपल एल्गोरिथम क्या लिखते हैं हम, लाइक इन वर्ड्स बता दो। क्या लीनियर सर्च, बट है क्या वो चीज़? लाइक हम, हाँ लीनियर सर्च है, बट हम उसको अगर वर्ड्स में बोल रहे तो हम एक एक एलिमेंट पे जाएंगे एंड चेक करेंगे कि दैट एलिमेंट इज 17 और नॉट। इफ इट इज 17 देन हमें अपना सर्चिंग कंप्लीट होगी एंड वो बंद हो गया। सो बेसिकली इफ यू टॉक अबाउट द कम्प्लेक्सिटी, तो इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वर्स्ट केस में क्या चली जा सकती है, लाइक नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास कितने होंगे, एंड राइट हमारे पास बिग ऑफ एन स्टेप्स होने वाले हैं, बिकॉज वर्स्ट केस कुड बी कि जो एलिमेंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो लास्ट में पड़ा हो, बिल्कुल हम लास्ट में चेक करें वो एलिमेंट है या नहीं जो हमें टारगेट गिवन दिया गया। ओके, सो बट अब एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिक्शनरी है और हमें उसमें एक कोड शेफ वर्ड फाइंड करना है, तो कोई बता सकता है कि हम डेली लाइफ में उसको कैसे फाइंड करते हैं? लाइक नॉट इन लीनियर सर्च मत बोलना, लाइक हम एक्चुअली कैसे करते हैं? अल्फाबेटिकली। लाइक तुम सबसे पहले ए पे जाओगे, फिर बी पे जाओगे, फिर सी पे जाओगे। यस। नहीं ऐसे तो नहीं करते, आई डोंट थिंक मैं वो तो कैसे करते हैं। मैं भी नहीं सर ऐसे नियर बाई अल्फाबेट्स में जाते हैं पहले, उसके बाद फिर उस पे अप्रोच करते हैं। जैसे मान लो, अच्छा वेट, इस तरह पूछता हूँ, मान लो तुमको कोई वर्ड है जो जी से स्टार्ट होता है और तुम आई पे पहुंच गए, फिर क्या करोगे? लेफ्ट मूव करेंगे। हाँ सही। लाइक इसको थोड़ा और अच्छा सा एग्जांपल बोलूं, लाइक बचपन में लाइक हमें बोलते थे मैम कि चैप्टर नंबर 3 पे चले जाओ, हमारे पास बुक होती थी एंड हम सीधा बुक खोलते थे एंड बीच में चैप्टर 6 खुल जाता था। तो हम क्या करते थे, हमें पता है हमें पीछे जाना है बिकॉज चैप्टर 3 पीछे है,
फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 हमने बुक खोली एंड सीधा चैप्टर 2 खुल गया, तो हमें पता है कि हमें अब आगे जाना है बिकॉज वो चैप्टर 3 वो आगे पढ़ा हुआ है, सही। तो क्या फायदा हुआ कि जब हमारे पास चीजें एक ऑर्डर में पड़ी होती है तो हमें जो सर्चिंग है वो हमें गाइड कर देती है कि जो ऑर्डर था वो गाइड कर रहा है हमें कि हमें किस तरफ जाना है। तो अगर सेम केस जब हमारे पास अगर एरे हो, नंबर्स पड़े हो, अगर हमारे पास वो सॉर्टेड एरे में पड़े हो, एक ऑर्डर में पड़े हो, दैट इज सॉर्टेड एरे, लाइक असेंडिंग ऑर्डर में पड़े हमारे, तो हम वो उस ऑर्डर का हम फायदा उठा सकते हैं टू एफिशिएंटली टू सर्च इन दैट एरे। लेट्स सी हम कैसे फायदा उठाते हैं उसको। अगर हम सेम ही जो भी कोड लिखा में कि डिक्शनरी में हम इस नंबर पे जाएंगे, हम फिर पीछे चले जाएंगे, अगर हम इस पे पहुंचे तो हम आगे चले जाएंगे, अगर हम इस चीज को प्रोग्रामिंग में देखें तो कैसे करते हैं वो, लेट्स सी दैट। वेट अ मिनट, अमर, इज माय स्क्रीन विजिबल? यस। ओके। सपोज हमारे पास एक एरे है 1 2 3 4 5 6 7 and we need to find our target 3. So हमें 3 को फाइंड करना है एंड हमारे पास 1 से लेकर 7 तक एक एरे। सो व्हाट वी विल डू इज कि मान लेते हैं बुक है वैसे ही और हमें चैप्टर 3 पे जाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने भाई बुक खोली एंड कहीं बीच में खोले, लाइक मान लेते हैं अभी के लिए हम हमेशा मिडल वाली चीज पे जा रहे हैं। तो हमारे पास शुरू में बुक थी 1 से लेकर 7 तक की, तो हमने लाइक ऐसा कुछ था, बुक 1 से लेकर 7 तक की बुक है, हमें पता 7 चैप्टर बुक में, तो हमने खोली बुक एंड हम सीधा आ गए 4th चैप्टर पे, ठीक है। हमने देखा है 4th चैप्टर, मैंने जो 3rd चैप्टर पे जाना था 4th चैप्टर आ गया, तो हम बेसिकली 3rd चैप्टर पे नहीं आए, दैट वाज, तो हम क्या करेंगे, हम पीछे जाने की कोशिश करेंगे। हमें पता है कि जो 4 से लेके 7 तक की चीज़ है यहाँ पे तो हमें फाइंड मिलने वाला ही है कुछ, तो हमने क्या किया, हम 1 से लेके 3 तक की चीज़ में आए, यार मेरी इस बुक के इस पार्ट में मेरे पास चैप्टर 3 मिलने वाला मुझे, तो अब हम क्या करेंगे, हम फिर से मिडल में जाएंगे उसके एंड विल ट्राई टू फाइंड कि यार ये चैप्टर कौन सा है। अब हम आ गए 2nd चैप्टर पे, हमें पता है कि हम काफ़ी पीछे चले गए, हमें अब आगे जाना है, तो इसको कैसे पता लगा कि 1 से लेकर 2 तक तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, तो हम आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये वाला सारा जो चीज़ थी हमें पता है ये तो इरेलीवेंट है, आगे चलते हैं। तब हम आए 3 पे एंड जो 3 वाला था, 3 का मिड तो 3 होने वाला है। जब हम 3 पे आए तो हमें पता लगा हम इसी चैप्टर पे आना तो सही है, तो बेसिकली हमारी जो सर्च है वो कंप्लीट होगी। लेट्स सी, तो बेसिकली हमने देखा, हमने सिंपली काफ़ी एफिशिएंटली सर्च को कर लेते हैं। टॉक अबाउट कम्प्लेक्सिटी थोड़ा बाद में करेंगे कि इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या होने वाली है एल्गोरिथम की। अभी तक सबको ये क्लियर है कि हमने कैसे किया, और कोई भी डाउट हो, लाइक इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर बाइनरी सर्च। सबको ये समझ आ रहा है कि हमने 4 को एक बार टेस्ट किया 4 को, हमने 5 6 7 एक झटके में ही एलिमिनेट कर दिया, ये काफी ज्यादा एफिशिएंट है ये चीज, एटलीस्ट ये बार जो हम बिना चेक करे ही एलिमेंट एलिमिनेट कर दे रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना। आई गेस क्लियर है। हाँ। सो अगर हमें कंक्लूड करना हो कि अभी तक हमने इससे क्या कंक्लूड किया है इस प्रोसेस से, तो हमें हमारे पास 3 केसेस आए थे कि जो हमारा जो मिडल एलिमेंट था, फर्स्ट केस में अगर माने तो वो टारगेट के इक्वल था, तो उस केस में हमने देखा कि हमारी जो सर्चिंग हो जाएगी वो कंप्लीट हो जाएगी, सर्च कंप्लीट्स। अब सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में हम लेते हैं कि जो हमारा टारगेट है, जो मिडिल एलिमेंट है वो टारगेट से बड़ा है, जैसे कि हमारा जो 4th एलिमेंट था वो 3 से बड़ा था, तो उस केस में हमने क्या किया था, हमने सारा राइट वाला साइड सब उड़ा दी थी हमने, सो एक तरह से हमने डिस्कार्ड कर दिया अपना राइट एरे। सो माय लास्ट केस वाज कि जो मिडिल एलिमेंट है वो टारगेट से छोटा हो, उस केस में हम लेफ्ट साइड को डिस्कार्ड कर देंगे। तो हम ये 3 पॉइंट्स को इन्फर कर सकते हैं अपने इस प्रोसेस से कि हम हमेशा ये 3 चीजें करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि हम उसको कोड कैसे करने वाले हैं। ओके, हमारे पास पहले तो हमें एक एक्टिव एरे को फाइंड करना था कि हमारे पास 1 से लेकर 7 तक की चीज़ है, उसके बाद हमने एरे को छोटा कर दिया था, अपनी सर्च स्पेस को छोटा कर दिया, तो उसके लिए हम 2 पॉइंटर्स लेने, दोनों पॉइंटर्स का होता है अभी, तो
हम दो वेरिएबल्स लेने वाले हैं कि लोअर हाई हमारे पास होंगे, लाइक शुरू में हमारे पास पूरा एक एरे था 0 इंडेक्स से लेके n-1 इंडेक्स तक हमें सर्च करना है। अभी के लिए ऊपर वाला कोड इग्नोर कर दो जो एरे है और वो सब है, वो बस एरे बिल्ड किया हमने सॉर्टेड, वो अभी देखने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियली अगर हम इनिशियलाइज करें वेरिएबल्स को, हमारे पास सब कुछ पूरे एक होल एरे है, हमें एक प्रोसेस को फॉलो करना है कॉन्टिन्यूसली, और उसके लिए हम एक व्हाइल लूप यूज करेंगे। बट अभी के लिए हमें एग्जिट कंडीशन पता नहीं उसकी क्या है वो, लेट्स लीव इट। हमें क्या करना था, हमें मिडिल एलिमेंट फाइंड करना उसका, दैट इज लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2। देन हमें 3 केसेस थे हमारे पास कि इफ माय मिडिल एलिमेंट इक्वल्स टू टारगेट, लाइक जो मेरा आंसर था मुझे मिल गया एंड मुझे सर्च को ब्रेक कर देना। सो माय नेक्स्ट केस वाज कि जो मेरा मिडिल एलिमेंट है वो टारगेट से बड़ा है। उस केस में हमने क्या किया था, हमने अपने राइट साइड को डिस्कार्ड कर दिया था। तो कोई बता सकता है उसको राइट साइड को कैसे डिस्कार्ड कर सकते हैं लो हाई की हेल्प से? लाइक एनी गेसेस? लो हाई हमारे एक्टिव एरे की रेंज है बेसिकली, लो इज द Sir, स्टार्टिंग पॉइंट mid ऑफ आवर एक्टिव। set कर गो देंगे। अहेड। समवन वाज सेइंग समथिंग। सर लो को मिड सेट कर देंगे, फिर से वही प्रोसेस। हमें राइट एरे को डिस्कार्ड करना है, लाइक आई विल डू इट 1 2 3। सर राइट को डिस्कार्ड करना है सर, फिर हाई को सर मिड कर देंगे। सही, हम हाई को अपना मिड कर देंगे और हमारा इतना सा एरे रह जाएगा। मिड नहीं, मिड -1 आई गेस, हाँ, बिकॉज़ मिड -1, लाइक हाँ बट इट्स करेक्ट कि हम अपने हाई की पोजीशन को चेंज कर देंगे, हाँ करेक्ट। लाइक हाई इक्वल्स टू मिड -1। लाइक स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं मिड -1 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो मिडिल एलिमेंट है मुझे पता है वो ग्रेटर है उससे, तो जो मेरा मिडिल एलिमेंट है वो तो है ही नहीं, तो उससे जो कम वाला एरे है वहाँ पे होने वाला है कुछ। सिमिलरली अगर हम बात करें, इस केस में हमें लेफ्ट साइड को डिस्कार्ड करना था, इस केस में हम लो को उठा के मिड +1 पे ले जाएंगे। लाइक सबको यहाँ तक क्लियर है कि हमने अभी तक क्या किया? लाइक एनी डाउट्स, लाइक कुछ भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, लाइक हाई लो वाला आई गेस कंफ्यूजिंग होगा। आई गेस देयर आर नो डाउट। ओके, थैंक यू। ओके, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद कि हमें अभी तक एग्जिट कंडीशन नहीं पता कि क्या होने वाली है, एंड अनदर थिंग वाज कि हमें कॉम्प्लेक्सिटी भी नहीं पता है सर्वोत्तम की। सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट कि इसकी एग्जिट कंडीशन क्या होने वाली है, कब तक ये प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, लाइक एनी आइडिया कि कब तक करेंगे हम, कब तक हम सर्च करते जाएंगे? एक सिंपल वर्ड्स में, वो चल डिलीट होगी। जो एरे था 1 से लेकर 7 तक का, वो ना एक्चुअली डिलीट हो जाती है जब एस्केप करते हैं, और स्टेप्स से सामने लिखे हुए हैं, ये 3 स्टेप्स है हमारे पास। जब इक्वल का केस होगा, ग्रेटर का केस होगा, जब हमारे पास लेस देन का केस होगा। लाइक हम नॉर्मल वर्ड्स में बोले, हम तब तक सर्च करते जाएंगे जब तक हमें कोई चीज मिल रही है। बेसिकली हमारे पास एक एरे है, तब तक हम सर्च करेंगे उसको। अगर हमारे पास एक एरे नहीं रहा, लाइक कोई भी एलिमेंट सर्च करने को नहीं रहा, तो हम क्या ही सर्च करेंगे उसमें, राइट? तो लेट्स सी कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इधर। जब हमारे पास एक एरे है, लेट्स सपोज दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स एक एरे है, ओके, लाइक एक अगर एरे होगा तो लो विल रिप्रेजेंट टू स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाई विल बी एट इट्स एंडिंग, ओके। अब एरे छोटा होता जा रहा है एंड लोअर हाई पास आते जा रहे हैं, एंड एट सम पॉइंट एरे सिर्फ एक ही लेंथ का होगा, एंड एट दिस पॉइंट लोअर हाई बिल्कुल सेम होने वाले हैं। एट नेक्स्ट स्टेप पे क्या होने वाला है, कोई एक शिफ्ट कर देगा कहीं पे ड्यू टू दिस कंडीशन, लाइक हाई इक्वल्स टू मिड -1 और लो इक्वल्स टू मिड +1, या हमारे पास ये वाला केस होने वाला है। ये वाला अगर केस आ गया तो लाइक सर्च इज कंप्लीट, बट मान लेते हैं हमें कुछ एलिमेंट ही मिला वहां पे, ओके, तो क्या करना है उस केस में? लाइक इधर हाई या लो मूव कर देगा एक स्टेप। तो उस केस में क्या होने वाला है,
लो यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा, इधर हाई हट के पीछे आ जाएगा इसके। सो इन दिस केस हम बोल सकते हैं कि जो हाई की वैल्यू है वो लो से बड़ी हो गई है। द मोमेंट इट हैपन्स हमें अपनी सर्चिंग को स्टॉप कर देना है, बिकॉज उसके बाद कुछ एरे बचा नहीं, हमें उसमें कुछ सर्च करने का फायदा नहीं है। तो हमें क्या करना था, जैसे ही हाई इज ग्रेटर देन एल हो हमें सर्चिंग को रोक देना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जब तक लो इज लेस देन और इक्वल टू हाई तब तक हमें सर्च करते जाना। इज दिस थिंग क्लियर? तो मैं ऐसे क्यों किया? पर इन अदर वर्ड्स अगर तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट दैट इज नॉट प्रेफर्ड। और हाई और लो वाली कंडीशन नहीं मिलती तब तक हमें करते जाना। अमर आई गेस नॉट ऑपरेटर पढ़ा दिया ना? नॉट मतलब पढ़ाया नहीं, बट हाँ आई गेस अगर नॉट बताओ। आना ही चाहिए, नॉट इक्वल्स टू में ऐसे करते हैं। हाँ नॉट इक्वल्स टू करते हैं। तो जब तक हाई और लो वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तब तक हमें ये करते रहना था प्रोसेस। ओके, इसको सेम इस वे में भी लिख सकते हैं। किसी को कुछ ऐड करना है? सही है, सही है। बढ़िया। ओके, नाउ लेट्स लुक एट कि इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी होने वाली है। दैट वाज ऑल कि बाइनरी सर्च इतना ही होता है कंप्लीटली। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि करेक्टली काम कर रहा है नहीं। लेट्स सपोज हमारे पास 10 का एक एरे है एंड वी नीड टू फाइंड 4। लाइक हमारे पास एक एरे जनरेट हुआ इतने से इतना, बट उसमें हमें 4 नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो बाय डिफॉल्ट आंसर -1 था, तो -1 रहा। लेट्स ट्राई टू लुक एट कि जो है एक्चुअली 25। एरे भी आई गेस चेंज हो जाएगी। व्हाट इफ मैंने किया नहीं सो दैट हमें नंबर्स पता नहीं चलेंगे। ओके ओके। So in this case कि let's see कि सही है 0th index, 1st index, 2nd index, 3rd, 4th and 5th। That's it. So हमें इंडेक्स रिटर्न करता है बेसिकली। yep basically we are returning the index। हमें 5th index पे अपना 25 मिल गया था, जो कि सही है। Okay, let's see complexity क्या है इसकी। So to calculate the complexity हम क्या कर रहे थे, basically we were calculating the steps कि कितने steps लग रहे थे इस algorithm को perform करने में। So we need to count the steps कि कितने steps है। Let's look to this कि हमारे पास starting में array था n size का, okay। Then what we did is कि हमें उसके mid पे गए थे and हमने पूरा एक half array को एक ही बारी में discard कर दिया था on the basis of these conditions। तो हमने क्या किया, हम n से अब हमारे पास जो सर्च स्पेस थी, एक्टिव एरे था जो हमारा n/2 बन गया, n/2 में वो चला गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसके क्या करेंगे, हम फिर से एक हाफ एरे को डिस्कार्ड कर देंगे, तो अब उसका हाफ क्या होगा n/2 का, लाइक n/4। दैट आई कैन राइट इट लाइक दिस कि 2/2। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप फिर से हम डिस्कार्ड कर देंगे हाफ एरे को, 2/3 हो जाएगा। सो इन दी एंड क्या होने वाला है, मान लेते हैं मैं kth स्टेप पे हूँ, कुछ k स्टेप्स परफॉर्म कर लिए एंड मेरी एरे की लेंथ कितनी होने वाली है, 2/k n डिवाइडेड बाय 2/k, राइट। अब लेट्स सी हमें ये कब तक करना था परफॉर्म, जब तक हमारे पास एक एलिमेंट था एटलीस्ट। तो मतलब n डिवाइडेड बाय 2k इक्वल्स टू 1। जब तक हमारे पास एक एरे का लेंथ थी तब तक हम ये करते रहना था। तो यहाँ से हमारे पास हो जाता है कि जो n इक्वल्स टू 2/k, एंड हमारे पास जो एल्गोरिथम का अभी तक बना, हमने इन्फर किया कि एल्गोरिथम के पास k स्टेप्स है, k स्टेप्स हुए थे एंड तब तक इसकी n/2/k इसकी लेंथ होगी, एंड हमने उससे बोला कि ये लास्ट स्टेप पे है, दैट इज इक्वल्स टू 1। उस केस में हम देखते हैं k की वैल्यू क्या आती है। लेट्स टेक log base 2 ऑन बोथ साइड्स, तो हमें मिल जाता है कि 2/k एंड k इक्वल्स टू log of n। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी है वो log of n की है। सबको क्लियर है ये वाली चीज? ओके, थैंक यू।
लाइक दैट वाज ऑल कि इस एल्गोरिथम की जो सर्चिंग है हमने log of n में कर दी फ्रॉम n टू log of m. दैट इज वेरी एफिशिएंट. Amar, would you like to add anything? नहीं, I think that covered all of it. I guess we should move. अच्छा, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को, right? Because we want to take it to, we want to do more questions about this. So if this is not clear, then next part will also be very fuzzy for you. We can explain it briefly again if someone wants a brief explanation फिर से तो हम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बता दो बस एक बार. I guess समझ आ रहा है. Cool. I guess we should move on to the next thing. Right. One second. Naveen, do you want to stop screen sharing or do you want to do it there only? Like questions discuss करना है ना? So do you want to do it on your Sublime only? The question? हाँ, yes, I can do it. Okay. Cool. Okay, So- so Okay, एक go बार ahead. मैं स्टेटमेंट पेस्ट कर देता हूँ, समझा ले. Hmm. तो a question is कि हमें एक array given है n integers का and एक ascending order में, that means कि एक sorted array given है हमें n integers का and हमें साथ में एक target भी given होगा and we need to find largest element that is strictly less than the target value in our array. So what it means कि इसको example से देखें तो 1 2 3 5 6 and 7 हमें एक array given है, मान लेते हैं array given है and हमें target value given है equals to 5 and हमें इन्होंने बोला है कि we need to find the index of largest element that is strictly less than the target. So target से कम like 5 से छोटा element find करना है वो सबसे largest हो. So here 1 2 and 3 both are less than 5 and we need to find the largest among them, that is 3. So we need to find the index of 3 in this case, that is our answer equals to 2. क्लियर हुई सबको स्टेटमेंट की क्या बोल रहा है इन्होंने, क्या फाइंड करना है? सवाल में किसी को कोई डाउट? Okay, I guess no questions. काफी Yeah. इंपॉर्टेंट है सीपी में, हम करते रहते हैं ये वाला प्रोसेस. ओके, एनी आइडिया? कोई सोल्यूशन देना चाहेगा? Yep. कोई कुछ आइडिया बताना चाहेगा बाइनरी सर्च को कैसे अचीव करेंगे? कोई आइडिया कैसे हम मॉडिफाई करेंगे कोड को so that we can accommodate binary search in this question? Nishta says find the target and return the index one less of the index that you find the target on. Okay, when found, when it's not found, what will you do? हाँ तो एग्जांपल दे दो for Okay, suppose let's take another case. तुम्हारे पास टारगेट वैल्यू है वो मान लेते हैं 4, क्या करेंगे हम? when found. Okay. Naveen, are you typing anything? No, I'm not typing it. ओके सो एक बार हम दिखा देते हैं कि हम सिंपली -1 क्यों नहीं कर सकते. 2 रीजन से क्यों नहीं कर सकते. Yep. पहला रीजन तो पहला रीजन ये था कि हमारे पास एलिमेंट ही ना हमें मिला, वहाँ पे 4 ही नहीं था, तो हमें 4 मिला नहीं तो हमारे पास आंसर -1 आएगा एंड हम कुछ नहीं कर पाएंगे. सपोज -1 भी नहीं आया तो कुछ और वैल्यू आ जाएगी, कुछ भी नहीं आएगी हमारे पास. तो ये एक Yeah. रीजन था. सेकंड रीजन ये था, फॉर एग्जांपल हम 5 का केस ही मानते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास एक एरे है 5 5. 5 के केस में क्या हो रहा है कि हम 5 को फाइंड किया, लाइक हमें पता नहीं कि कौन से 5 को पॉइंट करने वाला है, क्या पता इस 5 को पॉइंट करे, क्या पता इस 5 को पॉइंट करे. उस केस में हम सिंपली बाइनरी सर्च नहीं लगा सकते. वी कैन मॉडिफाई आवर बाइनरी सर्च, बट हमने जो भी सीखा हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते उस पर. उसमें हाँ मतलब बेसिकली हम उसमें सिर्फ -1 या बेसिकली एक आइडिया ये भी तुम हो सकता है सोच लो
कि हम 5 पे जाएंगे और फिर तब तक पीछे जाते रहेंगे, तब तक हमको कोई वैल्यू डिफरेंट देन 5 ना मिल जाए। बट द प्रॉब्लम विद दैट इज कि वो लीनियर सर्च के बराबर है। कैन यू शो दैट कि वो कैसा होगा? ओके, सपोज अब एक आइडिया आता है दिमाग में कि यार हमें 5 तक हमें 5 मिल गया। इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं कि मैं तब तक पीछे जाता जाऊंगा जब तक मैं 5 से बिल्कुल एक कम लेस वैल्यू पे नहीं आ सकता। एक जिसको तुम कोड बेसिकली लिख दोगे कि बाइनरी सर्च लगाया मैंने, मेरे पास एक आई इंडेक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपली वाइल माय एरे ऑफ एक जे इंडेक्स ले लेता हूँ, मान लेते हैं जे इक्वल्स टू आई, ठीक है। मैं तब तक चलते जाऊंगा पीछे जब तक एरे ऑफ जे इज नॉट लेस देन ना, हाँ ओके, तब तक दोनों वैल्यू इक्वल है, तब तक मैं जे माइनस माइनस करता जाऊंगा। एक तुम ऐसा कुछ कोड लिखोगे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं 5 पे पहुंचा, मैं पीछे पीछे जाता रहूंगा जब तक मैं 3 पे नहीं आ जाता, ठीक है। व्हाट विल हैपन इज कि मैं बोलूंगा इसकी बिग ऑफ एन। सपोज दिस इज माय केस कि 5 5 5 5 और मैं यहाँ पे एंड को पॉइंट किया मैंने, एंड व्हाट विल आई डू इज कि मैं पीछे 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 जाता रहूंगा, एंड बेसिकली व्हाट आई डिड वाज मैं n-1 टाइम्स पीछे गया एंड फिर जाके मुझे 1 मिला। दैट कम्स टू बी बिग ऑफ एन। कोई फायदा नहीं हुआ मेरे लोग बाइनरी सर्च लगाने का, बिकॉज इन द एंड मैंने बिग ऑफ एन वाली कॉम्प्लेक्सिटी चला दी थी वहाँ पे। एक समझ आया तुम्हें, लाइक हाउ इज इट नॉट बेनिफिशियल? मतलब इन एनी वे हम लोग बाइनरी सर्च फंक्शन के अंदर ही हमको चेंजेस करने पड़ेंगे, हम बाहर कुछ बदल नहीं सकते। आई गेस यू कैन, किसी को कोई आइडिया है तो नाउ इज द टाइम, नहीं तो फिर आई गेस वी विल शो द सॉल्यूशन। किसी को डाउट हो लाइक ऐसा नहीं होगा, लाइक कुछ और होगा, लाइक एनी आइडियाज, कुछ भी, लाइक ओपन डिस्कशन है, जरूरी नहीं बाइनरी सर्च, कुछ भी का आइडिया हो, लाइक पर बिग ऑफ एन से बेटर होगा। I guess we can continue. Naveen? Okay. So what we'll try to do is कि हमें अब क्या करना था, हमें लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है that is strictly less than a target value. So what, like I do it like this कि simply 1 2 3 5 5 6 7 like मेरा टारगेट था यहाँ पे 5, मेरी बाइनरी सर्च चल रही थी, ठीक है। एंड मैं मान लेता कैसे भी चल रही थी, अभी तुम बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेप से मत जाना, मान लेते मैं यहाँ पे आया, ओके, मेडिकल्स टू 5 पे, यहाँ पे भी मान लेते 5 है। मैं यहाँ पे आया एंड मुझे पता है मेरा आंसर क्या है, इस केस में 3 है, ओके। मैं मिड पे आया 5 पे एंड मेरा टारगेट भी था 5, तो मुझे यहाँ पे पता है कि मेरी सर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे क्योंकि 5 पे नहीं जाना था, मुझे 5 से कम वैल्यू पे जाना था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता चला यहाँ से कि जो ये वाला एरे है कंप्लीटली, इसको डिफरेंट कलर से कर देता हूँ, तो ये वाला एक एरे है मेरा 5 5 6 7, ये तो होने वाला नहीं है, इससे पहले वाली वैल्यू हो सकती है, बट इससे आगे वाला ये वाली वैल्यू तो बिल्कुल ही नहीं होने वाली। सो इन दिस केस when my target equals to so when my mid equals to target, now मैं क्या करूँगा, instead of breaking my search, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपना जो राइट वाला पोर्शन है उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगा, राइट। ये था मेरा एक केस। सेकेंड केस की बात करते हैं अब क्या करने वाले हैं, जब हमारे पास एरिया ऑफ मिड वाज ग्रेटर देन टारगेट। लेट्स सपोज अब येलो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज मैं मिड यहाँ पे आ गया था 6 पे, तो मैं इस केस में क्या करने वाला हूँ, ये केस बिल्कुल सेम है कि हम काफ़ी आगे आ गए, हमें अब ये वाला चीज़ तो चाहिए नहीं, हमें इसके पीछे जाना है। तो ये वाला केस बिल्कुल सेम था जैसे पहले हमने किया था, फिर से हम राइट साइड को डिस्कार्ड कर देंगे मिड -1 पे। एंड थर्ड केस भी हम सिमिलरली बोल सकते हैं, बिल्कुल सेम बनने वाला है कि मिड इज लेस देन टारगेट था जब, तो हम लेफ्ट साइड को डिस्कार्ड कर देंगे, सही। वन माइट से कि यार मैं तो 3 पे आ गया था, उसके बाद मैंने इस चीज़ को डिस्कार्ड करके मैं फिर 5 पे आ गया, लाइक इट कुड हैपन, लाइक ऐसा कुछ कोई बोल सकता है।
बट लाइक पॉइंट इज हियर इज कि हम क्या करने वाला है इसमें कि हमें पता है कि हमें वही एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं जब हमारा एरे ऑफ मिड वाज लेस देन टारगेट। इसी केस में हमें मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए था एंड हमें वी नो दैट कि हमारा एरे सॉर्टेड है, तो जो वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स भी सबसे बड़ा होने वाला है। तो हम क्या करने वाला है यहाँ पे, हम एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं, हम बोलेंगे अभी तक का जो मैक्सिमम आंसर आया है हम सिर्फ उसी को कंसीडर करते हैं। समझ आया मैंने क्या लिखा है? बेसिकली इस तरह देख सकते हो कि अगर करंट वैल्यू टारगेट से छोटी है तो ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, राइट? और हमको सारे पॉसिबल आंसर्स का मैक्स चाहिए फॉर मी टू हैव माय आंसर। तो बेसिकली हम एक इटरेटिव मैक्स लेते रहेंगे जो हर बार एक मैक्स लेगा, मतलब जो भी पॉसिबल आंसर्स का है उन सबका मैक्स रिटर्न करेगा सिंपली। लाइक इसको अगर हम सेम ही चीज को लाइक सपोज हम लेफ्ट साइड पे करके दिखाता हूँ, या एक बार करके दिखा देता हूँ। 1 2 3 5 बस पीरियड करना पड़ेगा। कैन आई रेज इट? आई गेस तुम एरे क्लियर कर दो ना, मतलब वो रिमूव मैं बस स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ ना इनको करके। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे भी क्लियर नहीं होता फर्स्ट टाइम ये चीज। लेट्स सी। One, 2, 3 and 5 and 5 and 5 7 3 4 5 6 7 ओके। लेट्स सपोज हमारे पास ये एल था, शुरू में हमारा एल इधर था एंड हाई इधर था। ओके, हमारा जो मिडिल एलिमेंट था वो बनता है 5 एंड हमने 5 को चेक किया। जब 5 मेरा आंसर नहीं हो सकता, इट इज इक्वल टू टारगेट, तो हम क्या करेंगे, मेरा आंसर था वो इसके पीछे वाला हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा न्यू एरे बनने वाला है, न्यू सर्च स्पेस बनने वाली है, वो बन जाएगी 1 2 एंड 3। लो यहाँ पे पॉइंट करेगा, हाई यहाँ पे पॉइंट करेगा। नाउ माय मिडिल एलिमेंट वाज 2। मेरा केस क्या बनने वाला, एरे ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट, ये वाला केस था, इसके अंडर फॉल करेगा ये। आई नो दिस कि ये एक आंसर हो सकता है, बट आई डोंट नो फॉर श्योर कि ये आंसर है या नहीं। तो मान लेते हैं ये आंसर इक्वल्स टू इसमें स्टोर हो जाएगा मैक्स ऑफ आंसर कॉमा माई दिस मिडल इंडेक्स। ओके, अभी के लिए हम मान लेते हैं शुरू में हमने आंसर को ना -1 पे इनिशियलाइज किया था, सो दैट हमेशा मैक्सिमम वैल्यू वाली, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम ये 2 पे आया था ना, तो ये 2 को स्टोर कर ले। सो मैंने इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया एंड मैं फिर से लो इक्वल्स टू मिड प्लस 1 कर दूंगा। ठीक है, अब मेरा क्या होने वाला है, अब मैं सिंपल लिमिट +1 कर दूंगा तो मैं सिर्फ 3 रह जाएगा मेरे पास एंड लोअर हाई पे आ जाऊंगा। अगेन मेरा ये सेम केस के अंडर फॉल कर जाएगा एंड मैं फिर से सेम प्रोसेस चलाऊंगा, बट मेरे पास पिछले बार वैल्यू क्या आ गई थी अपडेट होके 1 थी, कुल 2 का इंडेक्स 1 था। अब मैं फिर से सेम एल्गोरिथम चलाने वाला हूँ। अब आंसर विल से कि मैक्स ऑफ 1 comma mid was my 2, that comes out to be answer equals to 2 and फिर से low equals to mid plus 1 कर देगा एंड इस केस के कारण मेरा हाई इक्वल्स टू ग्रेटर देन एल हो जाएगा एंड मेरी सर्चिंग बंद हो जाएगी वहाँ पे एंड माय आंसर विल कम आंसर इक्वल्स टू 2। दैट वाज माय करेक्ट आंसर। समझ आया कैसे किया हमने? Okay, from starting or from which step? एक बार शुरू से एक प्रोसेस को आई गेस रिपीट कर दो, एक दूसरी एरे लेके। एक बार पूछ लेते, लाइक एरे चेंज करूंगा नहीं क्या कर दूं? बताओ इफ यू वांट, लाइक इफ यू वांट लाइक सेम एरे Changing. करूं या लाइक एक थोड़ा कुछ छोटा एरे ले लूं, एक छोटा सा एग्जांपल था ऐसे। ओके, एरे चेंज करने को बोल रहा है। ओके, कर लेते हैं। कैन एनीवन, किसी को सजेस्ट करना हो कि लाइक क्या मुझे इस पे समझना है, अगर ये वाला एग्जांपल हो तो?
तो बता सकते हैं। तो कुछ भी लिख दो। I guess just we should just start. क्या पता लिखना रहे हो। तो ऐसे कर लेते हैं ना कि टारगेट नॉट इन एरे, नॉट इन एरे। ओके ये वाला एग्जांपल। और हमें शुरू में एग्जांपल लिया था हमने 1 2 3 एंड 4 मान लेते टारगेट हमारा। तो इस काम करते हैं, हटा देते हैं। टारगेट इक्वल्स टू 4 एंड 1 2 3 एंड 5 6 7, राइट। इस केस में हमारे पास नहीं था। आई थिंक नहीं, एक काम ही करो ना, 1 2 3 3 5 6 7 कर दो। ओके हाँ, 2 ये 3 सही कर है। दो। 2 5 से कर दो। हाँ कर दो, सही है। 3 4 5 6, चलो देखेंगे। So let's start कि हमारे पास शुरू में एल और हाई थे यहाँ पे, एंड हम जाएंगे मिड पे। क्या आएगा मिड इसका? 3 लेफ्ट वाला ले लो, सेम ये ही है वाला। तो। डायरेक्ट आंसर पे आ गए। हाँ ठीक है, लेट्स सी। डायरेक्ट हाँ ना, दिस विल बी इंटरेस्टिंग। ओके तो हम यहाँ पे आ गए एंड इंडेक्सेस पे लिख लेते हैं, काम करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, आंसर 3 है वैसे। ठीक है, हम 3 पे आए एंड हमारा इनिशियली आंसर था -1। क्या कहते हैं नवीन, डू यू थिंक हमको एक और लेंथ इंक्रीज कर ही देना है कि 3 पे आ रहा है तो थोड़ा वियर्ड केस हो जाएगा ना कि पूरे टाइम वो ट्रेवर्स नॉट आंसर पे ही कर रहा है। 8 कर दो एक एंड में 7 के बाद। नहीं, इस केस में क्या होने वाला है कि अभी इस पे आंसर आया तुम्हारा ये और वाला फिर एरे, वो इस 5 एरे से में सर्च 7 कर रहा है तो 5 और 6 7 उसमें पे है ही आना। नहीं, और उसमें नहीं है हाँ ना। बट आंसर कभी अपडेट नहीं होगा इस केस में। हाँ तो एक बार में ही मिल जाएगा तो 8 एक कर दो काम आई गेस। करते हैं, दोनों केसेस ले लेते हैं, समझा देता हूँ। हाँ ठीक है, पहले ये से समझा देना फिर 8 के साथ भी समझा देना। ठीक है ठीक। तो इस केस में हमारा शुरू में आंसर था -1 एंड हम सीधा आए मिड पे। एंड हमारा जो केस था वो कौन सा केस था? थर्ड केस था, जिसमें हमने बोला था कि जो एरिया ऑफ मिड है, ऐसे से लिख दिया मैंने, समझ जाना, लेस देन टारगेट था। थर्ड केस था हमारा। और इसमें हम क्या कर रहे थे? हम 2 स्टेप्स कर रहे थे। एक तो हम एरे को छोटा कर रहे थे, एक हम आंसर को स्टोर कर रहे थे। तो इस केस में ये आंसर हो सकता है बिकॉज इट इज लेस देन 4। तो हम क्या करेंगे? आंसर इज मैक्सिमम ऑफ -1 एंड व्हाट इज इंडेक्स ऑफ दिस 3। इन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा वो लेंगे हम। दैट कम्स आउट टू बी 3। ठीक है, मैक्स दैट कम्स आउट टू बी 3 एंड हम एरे को हम आगे चलने वाले हैं। दैट कम्स लो इक्वल्स टू मिड +1, राइट। ये था मैंने किया फर्स्ट टाइम। अब सेकंड स्टेप में क्या होने वाला है? मेरे पास अब एरे बना 5 5 6 6 7, 5 5 6 7 एंड मेरा लो आया, हाई आया, मेरा मिड यहाँ मिड अलाइनमेंट मेरा ये 5 होगा। एंड मैं मेरा कौन सा केस आने वाला? एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन टारगेट। इस केस में मैंने कुछ अपडेट नहीं किया था एक्सेप्ट फॉर द हाई, एंड हाई इक्वल्स टू मिड -1। सिंपली अब मेरा सिर्फ ये 5 वाला एलिमेंट रह जाएगा। ठीक है, ये मेरा सेकंड स्टेप था। सो थर्ड स्टेप में मेरे पास सिर्फ 5 बचा एंड 5 मेरा फिर से सेम केस में आ जाएगा। लाइक थर्ड केस मान लो सेम केस आ जाएगा एंड हाई इक्वल्स टू मिड -1 कर देगा फिर से, एंड मेरी हाई और हाई ग्रेटर देन लो हो जाएगा बिकॉज इस केस में लो और हाई दोनों सेम है। लाइक आई गेस क्लियर हो गया कि हमें सिर्फ एक ही बार गए थे वहाँ पे एंड हमें वो वहाँ पे मिल गया था। हम लकी निकले इस केस में कि हमें मिल गया। लेट्स सी कि हम एक और केस लेते हैं। वन टू थ्री 5 5 3 6 7 8। ठीक है मैं, हाँ सही है सही। हाँ ठीक है, इस केस में हम 5 पे हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन लाइक इसका फिर से टारगेट 4 था बट एरे लेंथ हमने इंक्रीज कर दी। 0 1 2 3
लेट्स सी, लो हाई था, हमारे पास मिडल एलिमेंट क्या आने वाला है, 0 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, फोर्थ इंडेक्स आने वाला है। हम 5 पे आ गए। अब ये कौन सा केस हुआ, लेट्स सी फर्स्ट है ये हमारा एरे ऑफ मिडल इज ग्रेटर देन टारगेट। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अपने एरे को छोटा कर देने वाले हैं, h इक्वल्स टू मिड माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास एरे क्या बन जाएगा सेकंड स्टेप के लिए, 1 2 3 3। अब हम फिर से सेम एल्गोरिथम चलाएंगे एंड इस केस में हमारे पास जो मिडल एलिमेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 2, एंड इस केस में एरे ऑफ मिड इज लेस देन टारगेट। एंड व्हेन दिस इज द केस, हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो हम अब आंसर में क्या करने वाले हैं, मैक्स ले लेंगे -1 एंड 2 का इंडेक्स क्या था 1 का, एंड वी हैव 1, एंड हम अपने एरे को फिर अपडेट करके नया एरे बन जाएगा 3 3। सबको समझ आ रहा है ना, कोई किसी भी डाउट हुआ ना कुछ स्टेप की, या बहुत फास्ट हो गया बता देना। लाइक बाइनरी सर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइक अगर तुम कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की से बोलो या इंटरव्यू के लिए बोलो, ये पूछा जाता है हमेशा। हाँ, और एंट्री लेवल टॉपिक भी है, मतलब यू डोंट नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, तो जरूरी भी है, आगे आके काफी बिल्ड होती है इसमें चीज। ये हमारा कौन सा केस था, हमारे इस केस में मिडल क्या होने वाला है 3, एंड ये फिर से सेम वही केस आ गया, लेस देन वाला, एंड फिर से हम आंसर को अपडेट करने की कोशिश करेंगे एक्चुअली कोशिश क्या, मैक्स 1 थर्ड का इंडेक्स क्या था, फर्स्ट थर्ड का 2, एंड हम आ गए 2 पे, आंसर इक्वल टू 2 हो गया, एंड हमने फिर लो को फिर से मिडिल प्लस 1 कर दिया। क्या आगे देखते हैं, एंड हम फोर्थ स्टेप पे आए, एंड इस टाइम हमारे पास एक ही था एरे, दैट इज 3, और ये वाला 3 है बाद में। इस केस में फिर से सेम केस चलेगा, लिख लेता हूँ लास्ट पे, एंड फिर से हम अपडेट करेंगे, एंड 2, 3 में से हम देखेंगे, एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। दैट वाज माय आंसर। इसके नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास सर्च खत्म हो जाएगी। सो तानवी, इज इट क्लियर? I guess it is. So, I guess it has. तो हाँ, ओके, तो अच्छा कोड, हाँ राइट। एक बार कोड लिख के दिखा देते हैं। हाँ, सो वी नीड एन आंसर वेरिएबल जिसमें हम शुरू में -1 इनिशियलाइज किया था, बस लिख ही दिया मैंने कोड। लिख ही दो। पर still, हम सेम काम करने वाला है जो हमने पहले किया। हाँ, हम इस पर क्या करेंगे कि इन केसेस व्हेन माय एरे ऑफ मिडल इक्वल्स टू टारगेट, हमारी सर्च कंप्लीट नहीं हुई थी, मैं हाई इक्वल्स टू मिड -1 पे जाना था। else if second case was कि array of mid is greater than target, इसमें भी हमें फिर से सेम काम करना था, array of mid -1। थर्ड केस was कि हमें जब लेस देन मिले तो हमें आंसर यहाँ पे मिल सकता है, मैक्स ऑपरेशन लगाएंगे, करंटली जो मैक्स वैल्यू आंसर की वैल्यू है एंड मिडल वैल्यू में से जो मैक्सिमम है उसको कंसीडर कर लेंगे। and O equals to mid plus 1. And let's see out answer. Let's try कि हमें सही किया या नहीं। अगर हम इसको 13 दे, क्या हुआ? Initialize.
ओह सॉरी। जीरो 1 2 3 सही। सही काम कर रहा है। अगर हमें एरे फाउंड भी ना मिला तो भी हमने सही एलिमेंट दे दिया। लेट्स थोड़ा वियर्ड एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ना 60 कहीं पे भी नहीं है ना, बीच में भी कहीं नहीं है, बिल्कुल एरे के बाहर ही है ये चीज। लेट्स ट्राई टू सी कि हमारा कोड तभी भी काम कर रहा है। इस केस में सिर्फ 60 दिया मैंने, तो इस केस में 47 आना चाहिए लॉजिकली। लेट्स ट्राई। 9 हमारे 10 लेंथ का एरे था, तो ये बेसिकली 9th इंडेक्स होने वाला है, तो सही इस केस में भी काम कर रहा है। थोड़ा वियर्ड केस लेते हैं, थोड़ा देखते हैं नेगेटिव वैल्यूज पे भी काम करते हैं या नहीं। -7 -7 के केस में लाइक एरे के बिल्कुल पीछे होना चाहिए आंसर, कोई तो बेसिकली कुछ हाँ। आंसर नहीं है, -1 ही होना चाहिए मेरे पास। हम्म सो 0 भी ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। 0 में भी -1 होना चाहिए। राइट, कूल। किसी को कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो, कुछ भी करना हो, हाँ तो बता सकते हैं। कोई कोड की लाइन भी चेंज करके बोलना कि लाइक क्या पता ऐसे कुछ हो जाए। वी कैन एक्सप्लेन। नवीन, दोनों जो कोड है उनको आई गेस पेस्ट पिन या जिस्ट करके कोड शेफ वो टेलीग्राम पे भेज देना। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये अच्छा, भी ये और वाला। इसके पहले जो भाई ने सर्च किया था। ओके ओके, हाँ मैं गिटहब पेज पे भेज दूंगा जरूर। ठीक है, कूल। सो आई गेस दैट इज इट। डज किसी को Like- कोई क्वेश्चन? हाँ बताओ। ओके, लाइक सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इसके लेना देना तुम ट्राई कर सकते हो खुद से कि इस बार क्वेश्चन क्या था कि हमें एंड सेम क्वेश्चन है, बट हमें इस बार फाइंड करना है द स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन k। अगर इसका केस दूं, इस बार मुझे 13 फिर से गिवन है, टारगेट 13 सेम है, मान लेते 13 गिवन है, एंड मुझे अब फाइंड करना था 21। इंस्टेड ऑफ 12 रिटर्न करने के बजाय मुझे अब 13 को रिटर्न 21 रिटर्न करना है। इज इट क्लियर? ये तुम खुद से ट्राई करके देखना, बिकॉज टाइम हो गया। एंड किसी को कुछ भी डाउट हुआ तुम ग्रुप में डाल देना, वी विल सी दैट।